I think recording has started. Parul sir. Parul sir. सर मेरे को अनम्यूट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है. रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. Okay. चलिए. So a very good morning to all the eligible students for InfyTQ exam. I hope you will create wonders and bring accolades to our college, which is ABS Engineering College. So today we are going to discuss the number of questions which we have already floated to you, and I guess the number of questions are in 10. Okay. So the topic will be, we have chosen or we have categorized these questions like on the basis of simple joins and on the basis of certain keywords. So we have categorized them as DQL simple queries. Okay. So this is the first question which we have floated to you. Now there is no timer in this question. Okay. And I think you already have solved all these questions which we have floated yesterday to you. So let's see one by one. Okay. So according to you, what should be the perfect answer for this question? Can anyone or all of you, can you please reply what should be the appropriate answer for this question? The maximum of them are replying with C answer. Okay, maximum of them are replying C. Very without good. even asking, no, they all were Okay. replying. So has there anyone in the class? Let's see. अगर ऐसा है तो हम लोग इसको solve भी कर लेते हैं. So because we have to today we have to solve all these questions. Okay. So in this question, now we will follow the procedure. Procedure means yesterday we have discussed the total 8 steps. Okay. Question seems to be very simple. Output is also simple, but maybe many of them in the class, or maybe most of them in the class, or maybe a simple chunk in the class still is not clear with this question. So here we go. So in this case, first of all, we will select the from part. So what we have discussed, the very first line says that first of all, we need to pick up the data from the from clause, or we need to pick up the data from the join part. अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास from भी available है और हमारे पास join भी available है. So let's see. और किस टाइप का join है? The join will be of cross join. So you already know what is cross join. Cross join is Cartesian product of these two tables. So here we go. So we will put 11, 12, 80, 31, 12, 13, 23. Then we have 11, 12, 80, 31, 31, 16, 14. Then we have 11, 12, 80, 31, 15, 12, 19. Right? Then we have 41, 23, 92, 15, 12, 13, 23. 41, 23, 92, 15, 31, 16, 14. So हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर मेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ दीज टेबल्स. जितने भी नॉन CSIT स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं आज क्लास के अंदर, मे बी फ्रॉम सिविल, मे बी फ्रॉम मैकेनिकल, सो प्लीज आप लोगों को अगर कुछ डाउट है या कोई क्लैरिटी नहीं आ रही और आपने मेरे वीडियोस देखे हैं ऑलरेडी, सो यू कैन गो अहेड एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, नो इश्यूज. ओके. सो 41, 23, 92, 15, and then we have left with 15, 12 and 19, right? Then 12, 16, 67, 29, 12, 13, 23. Then we have 12, 16, 67, 29, 31, 16, 14, and then 12, 16, 67, 29, 15, 12, 19. Okay, so as of now, the cross product will be this one. That means the first tuple will be multiplied with every tuple of Q table. Then the next tuple of P table will be multiplied with each and every tuple of Q table, followed by third row. That means third row will be multiplied with each and every tuple of Q table, right? So this should be my cross product. Now after this,
Next step is where condition. So we need to execute p dot c must be greater than or equal to 80. So let's put it here. This is a dot, sorry, p dot a, this column. This column is p dot b. This column is p dot c. This column is p dot d. Then this column is q dot d. This column is q dot e, and this column is q dot f. Fine. Now condition says p dot c must be greater than or equal to 80. That means this particular column have a constraint, that in this constraint, in this column, we have only those values either which are equal to 80 or which are lesser than 80. So that means this tuple will be selected, this tuple will be selected, this tuple will be selected, because all the values in this particular tuple have value equal to 80. Then this has greater than 80. Yes, it is also going to be selected. It has greater than 80. Yes, it is also going to be selected. It has greater than 80. Yes, it is also going to be selected. Shall we? 67, 67, 67. No, because 67 is less than 80, neither equal to 80. So these three tuples will not be selected. Okay. Now after that, what we have seen? We have seen the where part. Okay. Now we are moving to group by. What we are going to do now? We are grouping the data on the basis of some condition. And what is that condition? That we need to group the data on the basis of D column of Q table. D column of Q table. और मैंने आप लोगों को group by में क्या बताया था? जब भी group by करते हैं, so group by will always be happen having some common values. And what are those common values? Let's make it as green. So 1 is 12 and there is another combination which is 12. So this is one particular group. Okay. We have 31. Yes, we have 31. Then this is, इसको मैं कर देता हूँ किसी और कलर से ताकि क्लैरिटी बन जाए. Let's make it as pink. Okay, we are going to make it as pink. So 31 and 31, they falls in one group. Then we have another. Let's make it as blue. 15 and 15. So हम यहाँ पर कितने ग्रुप्स बनेंगे? We have total 3 groups. One group belongs to 12 12, another group belongs to 15 15, and third group belongs to 31 31. Okay, so up to here we have calculated. Then fourth number step says aggregate function sum on the column Q dot D, and we are analyzing it as H. So we are going to make a table here. In this table, now the name of the table becomes H, and there is a column, and the name of the column is Q dot D, and we need to apply sum over here. So what should be the sum? 12 12 will be there, 24. Then we have 31 31, 62, and then we have 15 15. That means we have 30. So make it as in the form of tuple. Okay. Now, then after the execution of 4 step, we will come to the fifth part. What fifth part says? Order by using H. So जो H नाम का table है, ओके, वी हैव एलाइज क्यू डॉट डी. हाँ, हमने इसको एलाइज करके इसको ही नाम एच कर दिया है. मैंने टेबल का नाम गलती से रख दिया. ओके, सो द नेम ऑफ द कॉलम इज एच. सो वी आर पुटिंग हियर एच. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ऑर्डर बाय एच. Okay, so order by means the table must be in ascending order because we have not given any keyword. So what should be the final truth table for this or result set for this? Just a minute. The result set will have the data, that is 3 tuples in the form of ascending order. Okay, now what we need to do after 5th step, we will execute 6th step. What it says, limit 2 and offset 1. How many we need to remove? We need to remove first one, and limit says pick up remaining 2. So we'll pick 30 and 62. So final result set will be 30 and 62. So finally this is my final answer. So because of this, every student has chosen option C as the correct answer. ये तो सिंपल क्वेश्चन था. आई थिंक ये क्लास में भी हमने सॉल्व किया था इस टाइप का कोई क्वेश्चन. सबको समझ में आ गया पारुल सर? रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो. यस, सौम्या ने रिप्लाई किया, बाकी लोग रिप्लाई करो. एक बच्चे ने 4th स्टेप को रिपीट करने के लिए बोला है सर. 4th स्टेप, हाँ देखो 4th स्टेप इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ तक. 3rd तक तो सब समझ आ गया ना आपको, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है. जिसको 4th स्टेप नहीं समझ में आया, ध्यान से देख लो एक बार और. 4th स्टेप कुछ नहीं है. 4th स्टेप में एलाइजिंग हो रही है या एग्रीगेट फंक्शन निकालना है. ठीक है, देख लो यहाँ पे.
थर्ड स्टेप तक हमने ग्रुपिंग कर दी थी, यहां तक हमने क्या कर दिया था बेटा, इसको मैं ग्रीन कर लूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। थर्ड स्टेप तक हमने ग्रुप बाय बना दिया था। ग्रुप बाय आपको समझ में आ गया था, किस कॉलम पे लग रहा है ग्रुप बाय, डी कॉलम पे लग रहा है। और डी कॉलम पे भी कैसे लगेगा, जो टपल्स की वैल्यू है, जो रो की वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं कॉमन होगी, तो जहां जहां पर भी कॉमन होगी वो सब एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो हमने देखा था 12 एक ग्रुप में आ जाएंगे, 31 एक ग्रुप में आ जाएंगे, और 15 एक ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, अब जब थर्ड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, एज पर द गिवन 8 रूल्स, जब आपकी ग्रुपिंग हो जाती है या तो ग्रुप के बाद हैविंग चलेगा। अब हैविंग तो यहाँ पर है नहीं, तो जब हमारा ग्रुप बाय के बाद हैविंग चल जाता है, अब यहाँ हैविंग नहीं है तो ग्रुप बाय के बाद हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। ऑर्डर बाय से पहले क्या होगा, सम, क्योंकि ऑर्डर बाय तो हमेशा रिजल्ट सेट पे लगता है, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सम निकाल देंगे। सम क्या है, सम एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन, और सम क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, पूरे के पूरे कॉलम में से क्या करेगा, वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। सम का काम क्या है, सम टोटल मतलब एडिशन करेगा और रिटर्न कर देगा। किस टेबल में, क्यू टेबल में, और किस कॉलम पे लगा रहे हैं, डी पे। अब क्योंकि क्यू डॉट डी है, यहां पर मैंने नाम तो छोटा ही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्यू डॉट डी का नाम बदल के कर दिया एच, तो मैंने यहाँ इसको कर दिया एच। तो अब यहाँ मैं क्या करूंगा, जब तक मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी, क्यू डॉट डी कॉलम का नाम हो गया एच, तो इसलिए मैंने क्या करा, क्यू डॉट डी को कर दिया एच से रिप्रेजेंट, एलाइज है। ठीक है, इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यू डॉट डी है तो आप डी कॉलम का सब निकालोगे। अब डी कॉलम में क्या क्या है, एक तो 12 का कॉमन 12 है, एक 15 है एक ग्रुप में, और एक 31 में। तो अब मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग के बेसिस पे मैं सम निकालूंगा, तो 12 को ऐड करके आएगा 24, 15 को ऐड करके आएगा 31 है ना पहले, 31 को ऐड करके आएगा 62, और 15 को ऐड करके आएगा 30। ठीक है, यहां तक ये मेरा एग्रीगेट फंक्शन काम कर गया। अब जब एक बार एग्रीगेट फंक्शन चल जाता है तो फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट सेट को फॉर्मेट करने का भी ऑप्शन गिवन है। हाँ जी गिवन है, क्या गिवन है, ऑर्डर बाय लगा दो। ऑर्डर बाय लगाने का लॉजिक ये है यहाँ पर कि क्योंकि एमसीक्यू पूछा गया है तो सारे बच्चे एक करेक्ट आंसर ऑप्ट करें, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाय लगाया हुआ है। क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो ऑर्डर बाय मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर बाय करेंगे। ऑर्डर बाय के लिए यहाँ कोई भी कीवर्ड गिवन नहीं है, अगर यहाँ डिसेंडिंग लिखा होता तो ये हो जाता 62 30 24। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं है तो ये हो जाएगा 24 62 30। उसके बाद हम लिमिट पे आएंगे और ऑफसेट। ऑफसेट क्या कहता है, ऑफसेट कहता है रोज हटाओ, पहले कितनी रोज हटाओ, एक, तो ये 24 वाला क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या आएगा आंसर मेरे पास, क्योंकि आंसर मेरा ये ऑर्डर बाय के बेसिस पे ये हो गई होगी, तो ये हमने रिमूव कर दिया। लिमिट क्या बोल रहा है कि 2 उठा लो, तो हमने क्या करा 30 और 62 उठा लिया, तो इस वजह से मेरा जो आंसर होगा वो सी होगा। अभी क्लियर है, क्लियर है अब? हाँ हो गया सर, क्लियर। चलो सो ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, रिप्लाई करो भाई, जिसने, जानवी ने डी आंसर दिया, दीपक ने डी दिया, काव्या, सब डी दे रहे हैं, शशांक अग्रवाल, बाकी उज्जवल। अच्छा इनसे सर से पूछिए, इन लोगों ने क्या पिछले साल का इन्फीट्यूको का पेपर देखा है, सैंपल आप लोगों ने अपनी आरएनडी भी तो की होगी ना, कि जो हम पढ़ रहे हैं रेलेवेंट है या नहीं है। तो क्या आपको कुछ पेपर देख के समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे पिछले साल के पेपर में? 2 पेपर हुए थे शायद, 2 मीटिंग में हुए थे, एक सुबह की मीटिंग में हुआ था, एक शाम की मीटिंग में हुआ था। जल्दी से यस नो लिखो, पूछना सर। बताओ भाई। नहीं, दक्ष ने बोला नहीं। अच्छा तो आप एक बार काम कीजिएगा, नेट पे जब आप सर्च वर्च करते होंगे तो इन्फीट्यूको की साइट पे जाके या रजिस्ट्रेशन कराओगे, अगर उन्होंने लास्ट ईयर के पेपर गिवन है उस पर, तो प्लीज पेपर देख लेना, तो आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो सो आप लोग दे रहे हो ऑप्शन डी, इसका आंसर डी बताया ना सर इन लोगों ने? यस पारुल सर, डी सर, बता। यस सर, डी। अच्छा डी दिया इन्होंने आंसर, तो चलो लिखते हैं कि डी आंसर क्यों आया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक हैविंग भी गिवन है, काउंट गिवन है, और ग्रुप बाय गिवन है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से ही स्टार्ट करना है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से ही स्टार्ट करना है। देखो पहला स्टेप बताया था मैंने, सेलेक्ट करो फ्रॉम में से। फ्रॉम में क्या करना है, ऑर्डर। पहला स्टेप तो ये हो गया कि फ्रॉम में देख लो, अब यहाँ कोई ज्वाइनिंग तो है नहीं, मतलब यहाँ कोई ज्वाइन तो लगाया नहीं इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर टेबल में आ जाएंगे। आ गए हम ऑर्डर टेबल में। अब ऑर्डर टेबल में बोला है कि ग्रुपिंग करो किसके बेसिस पे, सेल्स आईडी के बेसिस पे। अच्छा जी, ग्रुपिंग करो सेल्स आईडी के बेसिस पे, तो सेल्स आईडी कॉलम में आ गए हम लोग। अब सेल्स आईडी में ग्रुपिंग करनी है तो पहले कुछ कॉमन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तो एक तो ये है, एक ग्रुप तो इनका बनेगा, एक ग्रुप बनेगा इन तीनों का। ठीक है, एक ग्रुप बनेगा 1 का और एक ग्रुप बनेगा 10 का। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूं ऐसे, एक बनेगा 2 2, एक बनेगा 1, एक बनेगा 10,
एक बनेगा 777। तो 3 का एक ग्रुप हो गया, 10 का एक ग्रुप हो गया, 1 का एक ग्रुप हो गया और 2 का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ग्रुप बाय लग गया, क्योंकि यहाँ वेयर नहीं है तो वेयर को हम स्किप कर दिया, हम डायरेक्टली ग्रुप बाय पे आ गए। अब जब ग्रुप बाय लग गया तो ग्रुप बाय के बाद क्या होगा, अगर कोई ग्रुप बाय ग्रुपिंग वाले डेटा पे भी हमें कुछ फिल्ट्रेशन करना है तो उसके लिए हैविंग चलेगा, तो थर्ड नंबर पे चलेगा मेरा हैविंग, थर्ड नंबर पे चलेगा मेरा हैविंग। ठीक है, अब हैविंग में लिखा हुआ है कि हैविंग में काउंट करो, काउंट क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट करो सेल्स आईडी, और सिर्फ वही सेल्स आईडी आनी चाहिए जो ग्रेटर देन 1 हो, जो ग्रेटर देन 1 हो। तो अब यहां देख लो क्या, अब हैविंग काउंट, तो पहले इस वाले सेल्स आईडी पे आते हैं, क्या यहाँ काउंट 2 है, हाँ जी, यहाँ काउंट 2 है, क्योंकि एक ये है एक ये है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस वाले ग्रुप को, क्योंकि क्या लिखा है, ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इस कितने हैं, सिंगल टपल है, क्या ग्रेटर देन 1 है, नहीं, इसका काउंट तो एक से कम है, एक के इक्वल है, तो इसको भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, इसको भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब हम 7 पे आते हैं, क्या 7 का काउंट 1 से ज्यादा है, हाँ जी, 7 का काउंट भी 1 से ज्यादा, क्योंकि यहाँ है 3, यहाँ है 2 और यहाँ है 3, तो हमारा जो जो हैविंग के बाद जो बचेगा वो बचेगा 2 2 और 7 7 7। ठीक है, अभी यहाँ पर सारे के सारे आपके वो आएंगे, क्या बोलते हैं, ये एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम। ठीक है, मैंने लिखे नहीं है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं, जब ये वाला भी सिलेक्ट हो गया, अब आएंगे हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ क्या बोला है, सेल्स आईडी सेलेक्ट करो और अमाउंट में से सम निकालो। ठीक है, तो सेल्स आईडी मतलब ये हो गई सेल्स आईडी, और अमाउंट हो गया ये। ठीक है, अमाउंट वाले कॉलम पे इन्होंने क्या है, सम। आपको पता है अमाउंट एक कॉलम है और सम क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन। सबको पता है कि एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, किसी भी कॉलम पे लगेगा और वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, सेल्स आईडी क्या होगी, 2। अब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक है 540 और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक है 2400। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, आई गेस ये आएगा कितना आ जाएगा, 540 ऐड करके 2940, 2940। ठीक है, और अब यहां पर है 777, तो 600 को ऐड कर लो, 720 को ऐड कर लो और 15 को ऐड कर लो, कितना आएगा, 1470। सो इस वजह से आई थिंक आप सब लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया होगा, तो द करेक्ट आंसर इज डी। समझ आ गया सर, पारुल सर, सिंपल है ये क्वेश्चन भी। रिप्लाई करो भाई, समझ में आ गया, रिप्लाई करो सब लोग, जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया वो लोग करो। यस कर रहे हैं सर। ठीक है, अब देखो ऐसा जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे अभी आप लोग विजुअलाइज कर रहे हो, तो कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा होगा इनफिट्यूट एग्जाम के अंदर, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो डिफिकल्ट डाल नहीं सकते वो। ठीक है, डिफिकल्ट तो 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, अगर 10 या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। तो ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी गारंटी है, जैसा अभी आपने स्क्रीन पे देखा है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको इसका आंसर दीजिए, आप लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया होगा तो जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। सर बड़े स्मार्ट बच्चे, ए आंसर, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ डी भी दे रहे हैं। अच्छा, उज्जवल ने सी दिया है, सौम्या ने सी दिया है, दक्ष ने डी दिया है, तुषार ने सी दिया है और शिवम ने सी दिया है। अच्छा, ठीक बाकी है, लोग, उत्कर्ष ने ए दिया है, उत्कर्ष गुप्ता ने, बाकी लोग सी किस किसने दिया है, सी भी काफी लोगों ने दिया। प्रियांशु मुग्दल है भी, इसने दिया सी। आयुष अग्रवाल ने सी दिया है। शिवम वर्मा ने सी दिया है। अच्छा, दैट मीन्स चलो इस कम से कम इन्होंने घर जाके सॉल्व तो किया है, या ऐसी तुक्के में मार रहे हैं। चलो दैट्स अ डिफरेंट इशू, इसको देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 स्कीमाज हैं, एक स्कीमा है सप्लायर नाम का और एक स्कीमा है कैटलॉग नाम का। सप्लायर वाले स्कीमा में सप्लायर आईडी है, सप्लायर नेम है, और कैटलॉग वाले स्कीमा में सप्लायर आईडी है और पार्ट आईडी है। ठीक है, इसने कहा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द बिलो मेंशन क्वेरी। क्या है क्वेरी, कि सेलेक्ट कीजिए सप्लायर नेम और काउंट कीजिए पार्ट्स की आईडी। ठीक है, कैटलॉग C1 इनर जॉइन सप्लायर S1 इनर जॉइन लगा है, और कंडीशन क्या है कि जो C1 की सप्लायर आईडी है वो S1 की सप्लायर आईडी होनी चाहिए, और ग्रुप बाय लगा है S1 डॉट सप्लायर आईडी। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप चलेगा, सबसे पहले चलेगा ये वाला स्टेप। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेप चलेगा, उसके बाद चलेगा सेकंड ये, और फिर थर्ड हम यहाँ आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि रिटर्न्स द सप्लायर नेम, द नंबर ऑफ पार्ट्स स्टॉक बाय देम एंड द पार्ट आईडी ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर तो 2 चीज पूछी है, एक तो पूछी है सप्लायर का नाम, एक पूछा है काउंट किसका, पार्ट आईडी का। तो अगर इस क्वेश्चन में लिखा होगा रिटर्न द सप्लायर नेम एंड द नंबर ऑफ पार्ट्स स्टॉक बाय देम, तक यहां तक तो जस्टिफिएबल लग रहा है ये आंसर। लेकिन तीसरी चीज इन्होंने लिखी पार्ट आईडी, तो पार्ट आईडी तो कहीं प्रिंट ही नहीं होगी, क्योंकि हम तो काउंट कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन जिसने भी बोला है उसको हटा दो।
ठीक है, अब बी ऑप्शन की तरफ आते हैं। कह रहा है रिटर्न द सप्लायर नेम एंड द पार्ट आईडी ऑफ द पार्ट्स स्टॉक बाय देम। हम पार्ट आईडी भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पार्ट आईडी हमने एग्रीगेट फंक्शन के अंदर मेंशन किया है, तो पार्ट आईडी पे एग्रीगेट फंक्शन लगेगा, लेकिन करेगा वो काउंट ही, पार्ट आईडी को काउंट करेगा। तो बी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब आते हैं सी पे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसमें कंफ्यूज हो गए। सी पार्ट क्या कह रहा है? रिटर्न द सप्लायर नेम एंड द नंबर ऑफ पार्ट्स स्टॉक बाय देम। दैट मीन सप्लायर का नाम भी हम रिटर्न करा रहे हैं एंड द नंबर ऑफ पार्ट्स स्टॉक्ड बाय देम। दैट मींस पार्ट आईडी से मैं क्या कर रहा हूं? नंबर ऑफ पार्ट्स को काउंट कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्ट्स को काउंट कर रहा हूं, और काउंट फंक्शन एग्जैक्टली कितने पार्ट्स मेरे पास हैं वो रिटर्न करा देगा। तो दैट मींस कहीं ना कहीं ये सुटेबल है कि सप्लायर नाम के साथ साथ हम रिटर्न कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्ट्स स्टॉक बाय देम। तो मेरी प्रेफरेंस है सी, मैं इसको चूज कर लूंगा। अब डी पे आते हैं। रिटर्न द सप्लायर आईडी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सप्लायर आईडी तो हमने कहीं पूछा नहीं था, तो बिल्कुल ही इरेलेवेंट ऑप्शन होगा इन चारों ऑप्शन में से। सो तो सबसे सुटेबल आंसर है दैट इज आंसर सी। आई होप अब सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया? रिप्लाई करो भाई, सबको समझ में आ गया? यस, ओके। तो अभिषेक सर, अभी एक फीडबैक लेना है इनसे। अच्छा। जिन बच्चों ने भी फीडबैक का जो हमने कल लिंक शेयर किया था, जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, मैं फीडबैक शेयर कर रहा हूं, और इसको मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चे नहीं भरेंगे, वही बच्चे भरेंगे जो हमारे रेगुलर बच्चे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। मैकेनिकल और सिविल के लिए हम थोड़े दिन बाद फिर से फीडबैक देंगे, तो मैं, और वही लोग भरेंगे जिन्होंने कल फीडबैक नहीं भरा ये वाला, ठीक है? तो मैं पेस्ट कर रहा हूँ मैसेज में, और ये मिल गया आपको फीडबैक लिंक। अब इस फीडबैक फॉर्म को खोलो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, और प्लीज अगर आपने इसको भर दिया है, भरने के बाद मुझे बोल दो फील्ड, मैसेज डाल दो। उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी भर रहे हैं, जो अभी भर रहे हैं, भरने के बाद मैसेज डालो फील्ड। 2 मिनट का ब्रेक है आपके लिए, आप 2 मिनट में ये फीडबैक भरो। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ बच्चे आज क्योंकि स्ट्रेंथ पूरी हो गई है, कुछ बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप भी आ रहे हैं कि हम सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसका हम एक नया एक तरीका निकालेंगे। आज अब ये प्रॉब्लम आ जाइए है तो हम इसका तरीका निकाल लेंगे। मीनवाइल किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उसे बता देना, रिकॉर्डिंग तो हम उसको दे ही देंगे ना। और हम मोबाइल नंबर हमने शेयर किया हुआ है, तो आप हमसे मोबाइल नंबर से भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, अभिषेक सर, ठीक है? हाँ जी सर, नो इश्यूज सर। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको भरो, और भरने के बाद मुझे फीडबैक दे दो। फील्ड अगर आपने कर दिया अभी ना, 2 मिनट का ब्रेक है आपके पास। लास्ट 1 मिनट और आपके पास। बहुत लोगों ने डन और फील्ड भेज दिया, थैंक यू सो मच। बाकी लोग भी फिल कर लें प्लीज। हाँ, अभिषेक सर, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए जी आगे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है? जान, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है? हाँ जी सर, बहुत आपको कोई बढ़िया, डाउट? बच्चे बहुत अच्छे हैं सर। तुरंत आंसर, आप क्वेश्चन फ्लैश करो। हमारे कुछ बी 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 सब लोग टाइप कर रहे हैं। बी, उज्जवल ने भी, मतलब मैक्सिमम लोगों ने बी टाइप किया है सर। अच्छा, मैक्सिमम लोगों ने बी टाइप किया है। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आया? नहीं, अभी हाँ एक आया, गीता उपाध्याय का ए। अच्छा, गीता उपाध्याय ने दिया ए।
ठीक है। और कितनी स्ट्रेंथ है? 251। 251 से कम नहीं हो रही है सर आज। अच्छा, तो सभी रिप्लाई कर रहे हैं या किस किस लिमिटेड सेट कर रहा है रिप्लाई? नहीं, सब तो नहीं करते हैं सर, सब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी लिमिटेड सेट ही है वही जो ठीक हमारा। है, चलिए देख लीजिए जिस जिसने ऑप्शन ए दिया है या बी दिया है, सी दिया है या डी दिया है, इसका क्या आंसर हो सकता है। इसके पास जगह तो नहीं है ना, यही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले तो इसमें गिवन है यूनियन ऑल। ठीक है, तो मैं आपको लोगों को यहाँ क्लियर कर देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पिछली बार यूनियन ऑल पे क्वेश्चन आया था आपके इनफीटीक्यू एग्जाम में, तो ये क्लास में तो नहीं पढ़ाया था, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। एक तो यूनियन ऑल होता है, एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, एक होता है इंटरसेक्शन ऑल। तो ये चार कीवर्ड भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देख लो। ठीक है, यूनियन ऑल और यूनियन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब आप यूनियन करोगे तो यूनियन के केस में आएगा कॉमन। भाई ये सीटी बीटी मत बजाओ, क्लास में बैठे हो, सब्जी मंडी में नहीं बैठे। आकाश, सर मैं इसको हटा रहा हूँ ना, ठीक है, ठीक है सर, कर दिया ठीक है, रिमूव उसको। तो ओके। ध्यान से देख लो, चार ये कीवर्ड्स हैं, यूनियन ऑल, यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑल। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, दो टेबल में या दो से ज्यादा टेबल के बीच में आपको ये दे सकते हैं। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा? जो यूनियन ऑल होता है या यूनियन होता है, दोनों सेम ही काम का काम करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। यूनियन में आएगा कॉमन प्लस अनकॉमन। ठीक है, दोनों टेबल का कॉमन पार्ट भी आएगा और अनकॉमन पार्ट भी आएगा। ठीक है, यूनियन के केस में नो डुप्लीकेसी इज अलाउड, नो डुप्लीकेसी इज अलाउड। यूनियन ऑल के केस में कॉमन भी आएगा, अनकॉमन भी आएगा, बट विद डुप्लीकेसी। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब अपना आंसर स्मार्टली चूज कर लेना। यूनियन ऑल में क्या बताया? कॉमन प्लस अनकॉमन एज वेल एज डुप्लीकेसी। यूनियन में क्या बताया? कॉमन प्लस अनकॉमन, नो डुप्लीकेसी। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन, सिर्फ कॉमन, नो डुप्लीकेसी, नो डुप्लीकेसी। और इंटरसेक्शन ऑल में कॉमन विद डुप्लीकेसी। ठीक है, विद डुप्लीकेसी। यहां तक सबको समझ आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। यूनियन ऑल का मतलब होता है कॉमन प्लस अनकॉमन। कॉमन प्लस अनकॉमन में से समझ आ गया कि जो दोनों टेबल के बीच में कॉमन होगा और जो दोनों टेबल के बीच में अनकॉमन होगा, सब टेबल के अंदर आएगा, लेकिन डुप्लीकेसी के साथ। दैट मीन्स अगर दो कॉलम होंगे तो दोनों के दोनों कॉलम्स आएंगे। ठीक है, यूनियन में कॉमन भी आएगा, अनकॉमन भी आएगा, लेकिन जो कॉमन वाली चीज होगी वो बिना डुप्लीकेसी के एग्जिस्ट करेगी। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आएगा, नो डुप्लीकेसी, और इंटरसेक्शन ऑल में कॉमन आएगा विद डुप्लीकेसी। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं इरेज, क्योंकि मेरे पास है जगह का कंस्ट्रेंट। अब देखो, हम पहली वाली क्वेरी देखते हैं। अब यहाँ पर दो क्वेरीज है, यूनियन ऑल के ऊपर एक क्वेरी और यूनियन ऑल के नीचे एक क्वेरी है। पहली ऊपर वाली क्वेरी क्या कहती है? सेलेक्ट बुक आईडी पेजेस फ्रॉम बुक डिटेल वेयर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे बुक में जाएंगे, तो पहला स्टेप हो गया बुक डिटेल। बुक डिटेल से आ गए हम इसके अंदर, ये मेरा हो गया पहला स्टेप। सेकंड पे चलेगा वेयर। वेयर क्या कहता है? वो सारे टपल सेलेक्ट करो जिनकी कॉस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 हो एंड परचेज डेट बिटवीन 1 जनवरी 19 एंड 5 जनवरी 19, इसके बीच में हो। ठीक है, तो उठाते हैं यहाँ से। अब मैं इसका टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो भी सब टपल सेलेक्ट होगा। तो कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, तो ये तो सेलेक्ट नक्को नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एंड में पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी तो सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम इस पे आते हैं, कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, ये हो रहा है, लेकिन परचेज डेट क्या होनी चाहिए? बिटवीन 1 जैन एंड 5 जैन। तो ये तो भैया एक साल पुरानी है, तो ये भी नहीं आएगी। ठीक है, अब आती है 500। 500 ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, हाँ जी, और 1 जन और 5 जून के बीच में है, ये वाला टपल हो जाएगा सेलेक्ट। ठीक है, अब आते हैं 350। इज 350 ग्रेटर देन और इक्वल टू 400? नो, ये भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां आते हैं, क्या कॉस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 400? हाँ जी, बट यहां पर आके फ्लॉ टूट जाएगा। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 400? हाँ जी, यस, इट इज गोइंग टू बी सेलेक्टेड। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर इक्वल टू 400 है और परचेज डेट है 1 जैन 19 और 5 जून 19 के बीच में, नहीं बीच में नहीं है, इंक्लूसिव होता है बिटवीन, तो 5 जून को हम कंसीडर करेंगे। 1 जैन 19 भी आएगा और 5 जैन 19 भी आएगा, क्योंकि बिटवीन इंक्लूसिव होता है, तो ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब बचता है ये
लेस देन और इक्वल टू 400 तो ये वाला टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेलेक्ट बुक आईडी की। तो ये हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया, थर्ड पे आते हैं। क्या बोल रहा है, जब कंडीशन जो वर्चुअल टेबल बनेगी उसमें से आपको सेलेक्ट करना है बुक की आईडी और पेजेस। तो बुक आईडी क्या है 102 102 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पेजेस कितने हैं 5 सॉरी 103, मैं गलत लिख रहा हूं यहाँ पे 103। हाँ जी 103 बुक आईडी और पेजेस कितने हैं 300, इसको यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या उठाना है हमें, बुक आईडी 106 और पेजेस कितने हैं 400। ठीक है जी, और कोई नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, नहीं पेजेस कितने हैं 450 मिस्टेकनली, ये आ गया 300 एंड 450। ठीक है, अब सेकंड वाली टेबल पे फिर से यही चीज है, क्या है, सेलेक्ट बुक आईडी पेजेस फ्रॉम बुक टेबल और पेजेस मस्ट बी ग्रेटर देन 250, पेजेस मस्ट बी ग्रेटर देन 250 और सेकंड कंडीशन क्या है, एंड कॉस्ट मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 400। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पहला ये चलेगा बुक डिटेल, फिर से इस टेबल के अंदर आ गए, फिर से हम क्या आ गए इस टेबल के अंदर आ गए। अब ये बोल रहा है सेलेक्ट करो वो चीजें जहां पर पेजेस ग्रेटर देन 250 एंड कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 400। तो पेजेस, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रिमूव कर देता हूँ, टेबल थोड़ी साफ कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को इजी समझ में आ जाए। ठीक है जी, ये हमने क्लियर कर लिया है यहाँ पे। चलो चलो जी, कंट्रोल पी। ठीक है, तो पहला बुक डिटेल में आ गए। अब क्या बोला है, सेलेक्ट करो वो टपल जिनका जहां पेजेस 250 से ज्यादा और कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 400। तो ये तो होगा ही नहीं सेलेक्ट किसी भी कीमत पे, क्योंकि कॉस्ट है ग्रेट लेसर देन आई मीन लेसर देन 400 और पेजेस भी पेजेस ग्रेटर देन 400 है, इसको तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, पेजेस कितने हैं ग्रेटर देन 250, हाँ जी, एंड कॉस्ट मस्ट बी, हाँ जी। तो हमें सेलेक्ट क्या करना है, बुक आईडी और पेजेस। तो यहां से मैं डायरेक्टली बुक आईडी उठा लेता हूं, क्या होगी बुक आईडी 102 और 500। ठीक है, अब सेकंड टपल क्या उठेगा 103, पेजेस मस्ट बी ग्रेटर देन 250, यस, कॉस्ट यस, तो 103 300। ठीक है, 300 क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे पेजेस उठाने हैं। अब आते हैं 104 की तरफ, कंडीशन मैट्रिक्स सेटिस्फाइड नहीं हो रही। 105 पे आते हैं, हाँ जी, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, कितने पेजेस बचेंगे कितने पेजेस हमारे पास 350। ठीक है, अब आते हैं 106 पे, क्या 106 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। तो 106 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने आगे पेजेस 450। अब आते हैं 107 पे, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इस टेबल को भी नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमें ये मिल गया, इस टेबल के साथ आंसर और इस टेबल का आंसर। अब इन दोनों टेबल के बीच में करना है यूनियन ऑल। यूनियन ऑल में मैंने क्या बताया था, कॉमन प्लस अनकॉमन एज वेल एज डुप्लीकेसी। ठीक है, कॉमन प्लस अनकॉमन एज वेल एज डुप्लीकेसी। अब देखो बी ऑप्शन को उठाओ, 300 है, हाँ जी है, 500 है, हाँ जी है, 350 है, हाँ जी है, 450 है, हाँ जी है, लेकिन डुप्लीकेसी नहीं है। तो बी ऑप्शन जिसने भी कहा भैया गलत है। ये यूनियन के केस में हो सकता था, यूनियन ऑल के केस में नहीं होगा। सी को देख लो, 300 है, 450 है, 500 है, 350 है, 450 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है। अब इसको देख लो, 300 300 500 350 450, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो करंट आउटपुट क्या होना चाहिए फिर, ऑप्शन ए 300 भी है, इसको मैं रेड करके दिखा देता हूँ, 300 है, हाँ जी है, 450 है, हाँ जी है, अगेन 300 आ रहा था, क्या 300 अवेलेबल है, हाँ जी 300 अवेलेबल है, ठीक है जी, 500 है, हाँ जी 500 भी अवेलेबल है, ठीक है जी, 350 है, हाँ जी 350 भी है, चलो जी हो गया, 450 है, हाँ जी 450 भी हो गया। दैट मीन्स जब आप इन दो टेबल्स को मर्ज करोगे और उसके बीच में यूनियन ऑल की कंडीशन लगाओगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन ए। समझ आया, यूनियन ऑल। अब इसी तरीके से अगर इन दोनों के बीच में यूनियन होता तो आपको आंसर पता है, इन्हीं दोनों के बीच में इंटरसेक्शन होता तो आपको आंसर पता, और इन्हीं दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ऑल होता तब भी आपको आंसर पता है। ठीक है, तो ये हमारे चार कीवर्ड्स होंगे, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑल। आई होप समझ आ गया होगा सबको। पारुल समझ में सर आ गया, रिप्लाई करो, आ गया समझ में सब लोग प्लीज। यस सर, बुक आईडी पता नहीं क्या पूछा, पूछो पूछो।
सर मुझे चेक करना पड़ेगा, वो चला गया ऊपर, बेचारे ने कुछ पूछा था। सर बुक आईडी सेलेक्ट नहीं होगी। कहाँ पे नहीं होगी बेटा? आयुष क्वेश्चन शुक्ला। ऊपर देखो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पेजेस। क्वेश्चन पढ़ो ना, ये जरूरी थोड़ी है कि जो क्वेरी गिवन होगा वही आंसर गिवन होगा। आप क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पेजेस इन आउटपुट व्हेन द बिलो क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड। क्वेरी दुनिया जहान की कुछ भी लिखी हो, भले ही सेलेक्ट पता नहीं उन्होंने क्या क्या करा रखा हो, लेकिन आप वो देखो जो आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा है। समझ मिल गया? आप तुम्हें आंसर मिल गया अपना? मिल गया भाई आंसर। ओके। क्वेश्चन का वो देख लेना हेडर की, क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता कि व्हाट विल बी द आउटपुट, तो आउटपुट के केस में फिर वही आएगा जो आप बोले, बुक आईडी भी आएगा, पेजेस भी आएगा, बुक आईडी भी आएगा और पेजेस भी आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर किस किसने लगाया, जल्दी से दो मुझे। ऐसा एक क्वेश्चन आया था, हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन आया था पिछले साल एक, एग्जैक्टली पारुल से सही बोल रहे हो आप। इसीलिए इसीलिए हमने दिया ऐसा क्वेश्चन एक। बी। किस किस? जानवी ने बी दिया आंसर। ओके, जानवी ने बी दिया, उसके अलावा बाकी किसी का नहीं आया। 250 बच्चों की क्लास में एक बच्चा आंसर दे रहा, वो भी ऑप्शन बी, और आप लोग लिख रहे हो कि हाँ हमने शीट सॉल्व कर ली। ऐसे कैसे सॉल्व कर ली भाई? बाकी लोग रिप्लाई करो, बाकी लोग क्या, अच्छा क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या था। बाकी लोग रिप्लाई करो, ये क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया था। कुड नॉट अंडरस्टैंड गीता। हाँ ऐसे आंसर दो ना, वेरी गुड। समझ नहीं आया सौम्या, ठीक है, हमें पता तो चले, मतलब एटलीस्ट कुछ तो लिखो ना। क्यों क्यों अभिषेक सर, हाँ पता तो एग्जैक्टली चले सर। कि आपने किया था, आपको क्या। सर टू डेट समझ में नहीं आया, ठीक है गुड। आप देखो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, अब आपको क्या पूछना है। टू डेट समझ में नहीं आया, अच्छा ठीक है गुड। और लोग बोलो, और लोग बताओ पहले। ट्राइड, ठीक है, आयुष ने ट्राई किया था, गुड 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 गुड। नेवर सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, गुड है अर्चित, ठीक है, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। बाकी लोग बताओ क्या हुआ था, नेवर। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग ने, सौम्या ने दिया, आयुष ने दिया, अर्चित ने दिया, अनुरीत ने दिया। बाकी लोग समझ नहीं आया आदेश, ठीक है सर समझा देते हैं फिर। ठीक है सर, देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वेरीज मर्ज हो रही हैं। देखो पहला क्या है, देखो ये जो है सब स्ट्रिंग, SUBSTR, इसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब यही होता है किसी एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को निकाल के लेके आना। ठीक है, इस सब स्ट्रिंग का कुछ पार्ट ये भी गिवन है 6,3, तो यहाँ पर कुछ होगा आपका, जहां से स्टार्ट करना कितने लेके आना। जैसे 6,3 है तो वो मैं आपको बता दूंगा इसका क्या मतलब है। एक फंक्शन इसमें है इनबिल्ट टू डेट, जैसे आपने एग्रीगेट फंक्शन पढ़े थे ना, उसी टाइप के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जो एक प्री डिफाइंड तरीके का काम करते हैं। सब स्ट्रिंग का मतलब आ गया किसी गिवन स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को उठा लेना। टू डेट का मतलब क्या हो गया कि जो भी डेट आपको गिवन है ये इनपुट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, टू डेट का काम क्या है, इस गिवन डेट को इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो टू डेट क्या कर रहा है कि जो 12/3/2021 आया, इसको वो क्या करेगा इस फॉर्मेट में, मतलब DD का मतलब हो गया डेट, मंथ का मतलब हो गया MM का मतलब हो गया मंथ, और YYY का मतलब हो गया ईयर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में गिवन है कि 12/3/21, 12/3/21 वो क्या करेगा। अब देखो यहाँ पर डेट है तो डेट को डेट की जगह आ जाएगी, मंथ की जगह आ जाएगा, ईयर की जगह आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डेट की जगह डेट 12 पिक्ड हो जाएगी, मंथ की जगह 03 पिक हो जाएगा, और ईयर की जगह हो जाएगा 2021 पिक्ड हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इस फॉर्मेट में आंसर क्या आना चाहिए, 12/03/21। अब सब स्ट्रिंग क्या करेगा, अब देखो ये जो 12/03/21 है, अब जो फाइनली वो होगा जो एसक्यूएल में ओरेकल है, जो स्टैंडर्ड है, वो इसको कैसे प्रेडिक्ट करेगा, वो इसको प्रेडिक्ट करेगा टू डेट को 12 मार्च MAR। ठीक है, 2021। आपने जितने भी मेरे क्वेश्चंस देखे होंगे सब में मैंने यही लिखा है MAR या JUN, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है। मार्च को वो क्या एसक्यूएल ओरेकल जो आपकी 10J वो क्या उठाएगा, मार्च को वो प्री डिफाइंडली उठाता है MAR। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो यही है 12 मार्च 2021। तो टू डेट क्या करेगा, 12/3/2021 को कन्वर्ट कर देगा 12 मार्च 2021 में। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया, 12 मार्च 2021। अब सपोज मैं यहां लिख देता 03/12/2021, कुछ यहां ये इनपुट होता 03/12/2021। अब देखो वो क्या करता, DD को कर देता 03 और 12 को कर देता दिसंबर। तो क्या आएगा 03 DEC 2021।
इस टाइप से। तो अगर आपको कुछ भी आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या समझाया था। कोई भी फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ कुछ भी इनपुट हो, वो हमेशा कंसीडर इसको करेगा DD MM YY, या जो भी पहले लिखा है उसकी कंडीशन में दे देगा। ठीक है, अब सपोज यहाँ लिख दिया मैंने 12/03 और 2021, और मैंने लिख दिया यहाँ पर YY DD MM, कुछ इस टाइप से दे दिया, तो वो इसको क्या करेगा, YYY जो वैलिड है वो 2021 ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका DD दिया है, तो DD 12 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर अब सेकंड नंबर पे क्या है 03, तो क्या करेगा, इसको कर देगा, सॉरी इसको प्रिंट कराएगा वो 03, पहले हमने लिया है क्या यहाँ पर डेट, हाँ, तो 03 डेट ले लेगा, और MM को ले लेगा वो मंथ, तो 03 MAR 2021। दैट मीन्स आपको किसी भी फॉर्मेट में इनपुट मिल जाए, कोई भी फॉर्मेट आपको मिल जाए, DD MM YY, YY MM DD या MM DD YY, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो आपका इस फॉर्म में आएगा, 3 मार्च 2021, 12 मार्च 2021, या 03 दिसंबर 2021। यहाँ मैंने 12 लिखना है, गलत लिख दिया। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया पारुल सर, टू डेट कैसे काम कर रहा है बच्चों को, जल्दी से बताइए। यस सर, आ गया। यस सर, सबको क्लियर है ना टू डेट? अभी तक मैंने सिर्फ टू डेट बताया है। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, क्योंकि मेरे पास स्पेस का है कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये कर देगा इसको क्या कर देगा इसको, 12 MAR 2021, इस इतने का आउटपुट आ गया ये। ठीक है, अब इस पे चलेगी सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या करेगी, काउंट करेगी, कितने, 6 पोजीशंस को काउंट करेगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6, या इसको मैं कर देता हूं ब्लू ताकि क्लियर हो जाए। और 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे पहुंच गए। अब कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, 3 कैरेक्टर उठाने हैं। तो दैट मींस एक तो ये R वाला उठेगा, एक ये उठेगा, और एक ये उठेगा। ठीक है, तो यहां से उठेगा R2, दैट मींस R-2, ये उठ गया यहां से। समझ आ रहा है? पहले वो 6 काउंट करेगा, कहां से, 1 2 3 4 5, ये 0 से नहीं काउंट करेगा, 1 से काउंट करेगा, ये ध्यान रखना। हमेशा SQL ओरेकल जो होगा वो 1 से उठाएगा इसको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के बाद 6 पोजीशन पे क्या है, 6 से क्या उठाने, 3 उठाने हैं, तो हमने क्या करा, R उठा लिया, हाँ जी, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे हो गया हाइफन, और ये उठा लिया। यहां तक हो गया क्लियर सब? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंकैटिनेट कर रहे हैं। क्या कंकैटिनेट कर रहे हैं, हाइफन, तो यहां पर आ जाएगा हाइफन। उसके बाद हम कंकैटिनेट कर रहे हैं 2021, तो 2021। अब देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, क्या A मैच कर रहा है, A तो नहीं कर रहा, B कर रहा है, नहीं B कर रहा, C कर रहा है मैच, हाँ जी C कर रहा है, तो C विल बी द करेक्ट आंसर एंड D इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे कितना लॉजिक लगा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, आई होप अब आपको क्लियर हो गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते बता दो भाई, बता दो। गुड सौम्या, थैंक यू। आयुष, जानवी, प्रियांशी, वृंदा कोहली, रीना पांडे, ठीक है, दक्ष, दीपक, वेरी गुड, विवेक, सोनिया, हर्षिता, त्यागी, क्लियर। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौस्तुभी, चलिए, क्लियर। हाँ, चलो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पिछले साल आया था। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन, आई होप आप सब लोगों ने सॉल्व किया होगा, जिसने भी शीट लगाई है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, और आपका जो इन्फी-टीक्यू का फर्स्ट एग्जाम था उसका पहला क्वेश्चन ही ये था, आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन। जल्दी से बताओ इसका क्या। ए ऑप्शन आ रहा है सर, पूछ, बच्चे एकदम फॉरवर्ड है। हाँ, इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा हर्षिता, मेरे हिसाब से। हर्षिता ने बी दिया, उत्कर्ष, बाकी सबने ए दिया है। अनुश्रुति ने, एक बार मैं चेक कर लूं, यही होगा ना। अपडेट सेट मोबाइल इक्वल टू 7878 वेयर आईडी इक्वल टू दिस, अपडेट सेट नेम इक्वल टू प्रीति वेयर आईडी इक्वल टू 1002। इस क्वेश्चन पे यूज किए गए सारे के सारे मोबाइल नंबर काल्पनिक है, इसका वास्तविक नाम से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, कृपया ऑप्शन ए करके ही होगा। इन्हें मिलाने की कोशिश ना करें, अन्यथा कोई और ही उठाएगा और आपको डांट पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे जरूरत तो नहीं है इस क्वेश्चन को, लेकिन हमारे पास सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो हम इसको सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है बच्चों, ये बोल रहा है कि इसमें तो सिंपल कुछ करना ही नहीं, कोई क्वेरी नहीं गिवन, बस इसमें तो अपडेट चलाना है। पहले चलेगा अपडेट स्टूडेंट सेट मोबाइल इक्वल टू 7878 वेयर आईडी इक्वल टू 103।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे सेट, अपडेट कमांड चलाएंगे और किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट टेबल को। स्टूडेंट टेबल के अंदर कौन सा अपडेट करना है, मोबाइल, क्योंकि सेट कीवर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल कहाँ है, यहाँ आ गए जी हम। ये कह रहा है कि वहां अपडेट करो जहां पर आईडी 1003 हो। कहां पर आईडी 1003, यहाँ पर। दैट मीन्स रितिका का फोन नंबर अब ये नहीं रहेगा, रितिका का फोन नंबर हो जाएगा 78788, ठीक है। अब ये बोल रहा है, ये हमारा डन हो गया। अब बोला है अपडेट करो स्टूडेंट को फिर से और सेट करो नेम, एस नेम प्रीति, जहां पर आईडी हो 1002। तो 1002 पे एस नेम क्या है, मेरा नाम ही अभिषेक, तो अभिषेक का नाम चेंज हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा प्रीति, ठीक है जी। अब ये बोला है डिलीट करो स्टूडेंट टेबल में से जहां पर जेंडर मेल हो और मोबाइल नंबर हो लाइक ऑपरेटर सर ने बता दिया। पैटर्न मैचिंग क्या बोल रहा है कि जहां पर भी किसी भी मोबाइल नंबर में जब आपको ये पैटर्न मिल जाएगा 5495, बीच में मिले, आगे मिले, कहीं पर मिले, वहां से इसको वो वाला फोन नंबर डिलीट कर दो। अब देख लो क्या यहाँ पर है 5495 का पैटर्न, यहाँ तो नहीं है। क्या यहाँ पर है 5495 का पैटर्न, हाँ जी मिल गया, 5495 का पैटर्न मिल गया। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे के पूरे टपल को उड़ा देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास बचा सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्या करना है, नेम सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, मोबाइल सेलेक्ट कर लो और फ्रॉम कर लो, फ्रॉम स्टूडेंट से। तो फ्रॉम स्टूडेंट में आ गए, फर्स्ट हम स्टूडेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टूडेंट में आगे स्टूडेंट का नाम, नाम क्या होना चाहिए, पारुल। ये तो हमने हटा दिया था क्योंकि यहाँ फोन नंबर भी अपडेट हो गया था और अभिषेक की जगह प्रीति हो गया था, ठीक है। तो पारुल आ जाएगा, ये वाला टप्पल। उसके बाद सॉरी, फोन नंबर हमने यहाँ चेंज किया था रितिका का, मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ। तो ये रितिका वाला आ जाएगा ऑप्शन और रितेश वाला आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जिसने भी ए बोला आप बिल्कुल ठीक हो, पारुल, रितिका एंड रितेश। और देखो ये सिंपल क्वेश्चन भी आया था पिछले साल, यही इसमें कुछ चेंजेस सर ने कर दिए होंगे या जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है, लेकिन ये एज इट इज इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आया था। तो आप समझ लो कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन और ये आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि टफी क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। यहाँ ये क्लियर है सब बच्चों को, आगे बढ़े पारुल सर। रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। क्लियर है सर, क्लियर है सर। ना मेरे को ना म्यूट करने में कभी कभी इसलिए टाइम लग रहा है, अनम्यूट हम्म, करने में, क्योंकि बच्चों हम्म। की रिक्वेस्ट आ रही है बार बार ना। अरे सर तो कोई इशू नहीं है, हम्म, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर किस किसने दिया है, जल्दी से बताओ मुझे, किस किसने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। बी 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 सौम्या ने, गीता ने, जानवी ने, सिद्धार्थ त्रिपाठी ने, दीपक सिंह ने, बी दिया है। हर्षिता त्यागी ने बी दिया है। हाँ। हम्म, और तो कहाँ गए भाई, बाकी लोग करो जल्दी, बाकी लोग रिप्लाई करो। काव्या गुप्ता ने बी बोला है। अच्छा हम्म, ठीक है, चलो हमारे पास टाइम कितना हो गया, 11:42, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी दो संदीप तीन कुमार क्वेश्चन पांडे सॉल्व, ने बी बोला है। ठीक है। प्रियांशु मुग्दल ने भी बोला है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जिस जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देख लो। अभी सब वही रिपीटेशन है जो हम पहले कर चुके हैं। देखो इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल टेकन फ्रॉम सम डेटाबेस, ये मेरी क्वेरी है। और इसमें पूछा है व्हेन द फॉलोइंग क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर एज अ पार्ट ऑफ आउटपुट, एज अ पार्ट ऑफ आउटपुट। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कहाँ जाएंगे, फ्रॉम पार्ट में, हाँ जी। तो चलो हम ईएमपी के अंदर आ गए। अब फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड ग्रुप बाय, वेयर तो यहाँ है नहीं, ग्रुप बाय होगा किसके बेसिस पे, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में आ गए। अब डिपार्टमेंट में भी वो क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट में जब ग्रुप बाय होगा तो कॉमन वैल्यूज के बेसिस पे होगा, तो क्या होगा, अकाउंट्स, अकाउंट्स एक तरफ आ जाएगा, यहाँ लिख लो अकाउंट्स, अकाउंट्स आ गया एक तरफ, ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया। उसके बाद दूसरा बनेगा एडमिन का, तो एडमिन एडमिन आ जाएगा दूसरी तरफ, एक ग्रुप बनेगा एडमिन, एडमिन और एडमिन, ठीक है। अब बचा सीएससी, तो एक ग्रुप बनेगा सीएससी, सीएससी और सीएससी का, एडमिन एडमिन कंप्लीट हो गया, तो एक ग्रुप बनेगा सीएससी, सीएससी एंड सीएससी, ठीक है। ये तीन ग्रुप बन गए। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, दो तीन बार हम सॉल्व कर चुके हैं यहां पर भी, और हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, जब सेकंड ग्रुप बन गया मेरा, मतलब ग्रुप बाय चल गया, तो हैविंग क्लॉज भी इन्होंने लगाया। हैविंग क्लॉज क्या बोल रहा है कि वो सब टपल सेलेक्ट करो जिनकी एवरेज एम्प्लॉय सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 20500 एंड सम इंसेंटिव मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 600। तो हैविंग के अंदर अब जो हैविंग क्लॉज है वो मैंने आप लोगों को कल बताया था, हैविंग क्लॉज किस पे चलेगा, ग्रुप्ड डेटा पे। तो एक हैविंग तो यहाँ होगा, एक हैविंग की कंडीशन यहाँ चेक होगी, एक हैविंग की कंडीशन इस ग्रुप पे होगी चेक, ठीक है। अब अकाउंट की क्या बोली उन्होंने, एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी क्या है, निकालनी पड़ेगी।
एवरेज सैलरी कहां से निकल रही है? एम्प्लॉय सैलरी से। तो कितनी अकाउंट की? अकाउंट के सामने यहाँ लिख देता हूं मैं 27,000, एक तो ये हो गया, और एक अकाउंट के सामने लिख देता हूं 27,000। एवरेज कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। कितना आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा 27,000। तो इनका एवरेज हो गया 27,000। ठीक है, अब एडमिन पे आते हैं। एडमिन क्या बोल रहा है? इसका भी एवरेज निकालो। तो कैसे निकालोगे? एडमिन का निकालने के लिए करना पड़ेगा 20,000 प्लस दूसरा कितना एडमिन के पास? एडमिन के पास है 25,000। ठीक है, प्लस तीसरे वाले एडमिन के पास भी है 20,000। तो यहां हमने कर दिया 20,000। इनको काउंट कर लो, डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? ये हो जाएगा 45 प्लस 65, 65 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आएगा आपका 3 दूनी 6, 3 अच्छा 21, कुछ इस टाइप से आएगा 21666। और पॉइंट में भी आएगा। इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखा है इन्होंने? इसको मैं कर देता हूँ 2.667 कर देता हूँ। ये कुछ इतना एवरेज आएगा इनका। ठीक है, अब हम निकालते हैं सीएससी का। अब सीएससी में कितनी कितनी सैलरी है एम्प्लॉय की? 40,000 प्लस 50,000 प्लस और कितना बचा? 30,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ये कितना होगा? 5 9, अच्छा ये हो जाएगा 40,000। इसका एवरेज आ गया 40,000। ठीक है, तो एक एवरेज तो आया मेरे पास 27,000, एक एवरेज आया मेरे पास 21,667, 6,667, एक आया मेरे पास 40,000। ये 3 एवरेज निकल के आए। अब ये बोला है एंड सम इंसेंटिव मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन 600। तो पहले अकाउंट्स का सम निकाल लो। अकाउंट्स का इंसेंटिव कितना आ रहा है? अकाउंट्स का आ रहा है 400 और दूसरे अकाउंट में है नल। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था जब एग्रीगेट फंक्शन है तो एग्रीगेट फंक्शन में सिर्फ काउंट एक ऐसा है जो कि नल वैल्यू को कंसीडर करता है। उसके अलावा कोई भी एग्रीगेट फंक्शन होगा वो नल को क्या कर देगा? स्किप कर देगा। तो मतलब 400 ही रिटर्न हो जाएगा। तो अकाउंट का कितना आएगा? 400। एडमिन का कितना आएगा? 600। ठीक है, और सीएससी का कितना आएगा? 1300। ठीक है, अब देखो, तो हमें कौन से रखने? हैविंग एवरेज एम्प्लॉय सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 20,500, 27,000 एंड सम इंसेंटिव मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 600। दैट मींस ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, अकाउंट हट जाएगा। अब बचा क्या? एडमिन एडमिन और सीएससी सीएससी, क्योंकि ये एवरेज सैलरी से ज्यादा है और इनका जो इंसेंटिव का सम है वो भी 600 के इक्वल है। एवरेज ज्यादा है और जो सम है इंसेंटिव का वो भी 600 से ज्यादा है। तो ये दो टपल सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है सेलेक्ट करो डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी एंड सम इंसेंटिव। ठीक है, तो कितने टपल सेलेक्ट हुए हैं? डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट है एडमिन। ठीक है, एवरेज सैलरी कितना है? 216667 और सम कितना है? 600। दूसरा डिपार्टमेंट कितना है? सीएससी। एवरेज सैलरी कितना है? 40,000 और इंसेंटिव कितना है? 1300। ठीक है, ये दो हैं। अब देखते हैं रेलेवेंट आंसर। रेलेवेंट आंसर में अकाउंट्स, अकाउंट्स तो हो ही नहीं सकता। सीएससी अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता। एडमिन अकाउंट सीएससी का कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर एज अ पार्ट ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर सेम ही आउटपुट भी आ सकती है क्योंकि पार्ट ऑफ आउटपुट पूछा है। तो सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा? बी, बिकॉज हमने क्या निकाला है? सीएससी का एवरेज सैलरी है 40,000 और सम कितना इंसेंटिव का? 1300। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस माइट बी द करेक्ट आंसर। सर समझ में आ गया सबको? जिसने ऑप्शन बी नहीं दिया था उसको समझ में आ गया? क्लियर है सर, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन है ये बहुत हो सकता है पहले डिफिकल्ट लग रहे हो लेकिन अब तो इजी हो गए क्वेश्चन क्योंकि आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता है और कैसे काम कर रहा है ये सब चीजें आपको क्लियर हो ही रही हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर दो। क्या आंसर दिया है इसने? कहा बच्चों ने? सर लिख रहे हैं बच्चे? बी बी। ए, बी। यशी ने ए दिया है। हाँ। आदित्य, बाकी सब लोग बी टाइप कर रहे हैं। उत्कर्ष गुप्ता ने ए दिया है। हम्म। ओके, बाकी लोग बी टाइप कर रहे हैं। बाकी लोग भी हम्म, रिप्लाई कर, अच्छा ठीक है। बी टाइप कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी रिप्लाई करो। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करो भाई।
आ रहे हैं सर आंसर? और नहीं, संदीप कुमार पांडे के बाद आंसर नहीं आया। अच्छा, बाकी के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं भाई? आप लोग भी दो आंसर, आप रिप्लाई भी तो करो क्लास भाई। का पार्ट हो। दक्ष ने दिया डी, अच्छा मतलब दक्ष ने शायद अभी सॉल्व किया मेरे ख्याल से। ओके, बाकी लोग चलो 2 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी से दो आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सर आप स्टार्ट कर दो। ओके ठीक है, देखो, रोशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वैसे देख लेते हैं पहले। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल टेकन फ्रॉम डेटाबेस and write a query which displays the name of employees along with their manager name. Okay, output should display employee id, name, manager name. अच्छा, तो हमें ऐसे एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं। ओके, राइट अ क्वेरी विच डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद देयर मैनेजर नेम। क्या वो सब एम्प्लॉयज सेलेक्ट करने हैं या उन एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना है उनके मैनेजर नाम के साथ। और आउटपुट में आएगा ई एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, मैनेजर की आईडी और मैनेजर का नाम। ओके चलो, 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास, चलो देखते हैं। तो पहले आते हैं ऑप्शन नंबर ए के पास। ये क्या बोला है? सेलेक्ट इवन डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इवन डॉट नेम, ठीक है, ई2 डॉट एम्प्लॉय आईडी और उसको इन्होंने एलाइज कर दिया मैनेजर आईडी, ठीक है, यहां तक सही है। ई2 डॉट नेम और नेम को एलाइज कर दिया इन्होंने एज मैनेजर नेम, यहां तक बिल्कुल ठीक है। और फ्रॉम एम्प्लॉय इवन इनर ज्वाइन एम्प्लॉय ई2, ये क्वेरी तो ठीक है, लेकिन कंडीशन मैच नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इनर ज्वाइन के बाद यहाँ पर ऑप्शन में कुछ कुछ क्लॉज ही नहीं गिवन है। दैट मींस इनर ज्वाइन का मतलब हो गया दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी, तो कभी हम निकाल ही नहीं पाएंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेलेक्ट इवन डॉट एम्प्लॉय आईडी, इवन डॉट नेम, ई2 डॉट एम्प्लॉय आईडी एज मैनेजर आईडी, ई2 डॉट नेम मैनेजर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इवन, नेचुरल ज्वाइन एम्प्लॉय ई2 ऑन इवन डॉट मैनेजर। सिंटैक्टिकली ही गलत है। क्यों? नेचुरल ज्वाइन डज नॉट रिक्वायर ऑन, नेचुरल ज्वाइन में तो इनबिल्ट होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। वरना क्या होगा, नेचुरल ज्वाइन के अंदर भी ऑन कंडीशन है और ऑन कंडीशन चलने के बाद फिर से ऑन कंडीशन लग जाएगी, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी क्या कर रहा है? सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी डॉट ई आई डी, एम्प्लॉय इवन डॉट नेम, ई टू डॉट एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी, ई टू डॉट नेम मैनेजर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इवन, इनर ज्वाइन एम्प्लॉय ई टू ऑन इवन डॉट मैनेजर आईडी नॉट इक्वल टू। दैट मीन्स this also not going to be successful. That means let's see the option D whether it is correct or not. Select employee1 dot employee id, e1 dot name, e2 dot eid, manager id, e2 dot name manager name from employee e1, inner join employee id on e1 dot manager equal to e2 dot eid. That means option D हो सकता है। Let's verify this. Okay, तो क्या किया है इस क्वेश्चन में? E1 का इनर ज्वाइन करना है E1 के साथ ही, सॉरी E2 के साथ ही। दैट मीन्स इसका इनर ज्वाइन इसी के साथ होना है, तो ये एक तरीके से सेल्फ ज्वाइन बन गया। कंडीशन क्या है? इवन डॉट मैनेजर इक्वल टू ई टू डॉट आईडी। अच्छा, इवन टेबल की जो मैनेजर आईडी है वो ई टू टेबल की एम्प्लॉय आईडी के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो टपल्स को सेलेक्ट करेगी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का? अगर हम लोग वर्चुअल टेबल बनाएंगे तो इसमें कितने टपल्स आएंगे? वो कंडीशन आएंगी जहां जहां पर मैनेजर की आईडी इवन की वहां के एम्प्लॉयडी के आईडी के साथ इक्वल हो, मैनेजर आईडी इवन टेबल की ई टू टेबल के एम्प्लॉय के आईडी के इक्वल हो। एक तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। दो, उसके बाद एक कंडीशन यहां आ रही है, वन मस्ट बी वन। कहीं और आ रहा है वन? नहीं आ रहा है। तो लॉजिकली मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो मैनेजर की आईडी कितनी है? 2। मैनेजर की आईडी है 2, यहां पर मैनेजर की आईडी है 2, यहां पर पवन की आईडी है 1। इसको क्रॉस ज्वाइन कर लेते हैं पहले। तो क्या टपल बनेगा? यहां पर लिख लेता हूं मैं एम्प्लॉय आईडी, यहां पर लिख लेता हूं नेम, यहां पर लिख लेता हूं डिपार्टमेंट, यहां पर लिख लेता हूं मैनेजर। कंप्यूटर आईडी में लिखता नहीं जो भी है क्योंकि पूछा नहीं गई है। तो 1 नेम हो गया अमित, ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया ईसी और इसका कोई मैनेजर नहीं है, नल है यहाँ पर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मैच होगा? ये मैच होगा। एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी 5, नेम आ जाएगा पवन, ठीक है, ईसी और मैनेजर कितना हो जाएगा? 1। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है? सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी कहाँ से? E1 से, तो 1 आ गया, नेम आ गया अमित, ठीक है, अमित। ओके, E2 टेबल से आएगी एम्प्लॉय आईडी जिसको हमने बोल दिया मैनेजर आईडी, तो इसको मैं रीनेम करके यहाँ कर देता हूँ मैनेजर आईडी। मैनेजर आईडी कितनी है? 5 हो जाएगी,
ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, E2 से जो आईडी आएगी वो बन जाएगी मैनेजर आईडी, और एम्प्लॉय का जो नाम आएगा E2 टेबल से उसको बोल देंगे मैनेजर का नेम। मैनेजर का नाम आ गया पवन, ठीक है। दैट मीन्स अमित का मैनेजर कौन होगा? पवन। दैट मीन्स यहां पर आप पवन हम इजिली बोल सकते हैं, समझ आ गया यहाँ पे। सो पवन इज द मैनेजर ऑफ अमित। सिमिलरली रोहित का मैनेजर कौन होगा? रोहित का मैनेजर अजय भी होगा और रोहित का मैनेजर विजय भी होगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट दिस आंसर। सबको समझ आ गया बच्चों? बताओ जल्दी से मुझे, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पूछो भाई। कंफ्यूजन यस, मत रखना। सौम्या ने बोला यस, जानवी ने बोला यस। यस सर, यस सर, यस सर, गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखो, यस, बाकी लोग को रिप्लाई करो, किसी को कोई डाउट तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। रिप्लाई करो। क्लियर, उज्जवल ने बोला, बाकी लोग क्लियर। ऋतिक, देखो आज घर जाके ना एक टेबल बनाना, अपनी क्लास का एक टेबल बनाना। और कभी कभी होता है ना हमारी क्लास में, हमारे फैकल्टी बोल देता है कि ऐसा है, सुनो सौम्या, तुम ना ये प्रीति को तुम गाइड करोगी, ठीक है, क्योंकि प्रीति 5 दिन बाद आ रही है। अच्छा प्रियांशु, तुम ना पुरु को करोगे, ठीक है। और अच्छा तुम इधर आओ, और मतलब ऐसे ऋतिक, ऋतिक तुम करना गीता को। तो इस तरीके से, मतलब अगर मैं बात करूं गीता की, या गीता का मॉनिटर इस समय कौन है? ऋतिक है। तो इस तरीके से आप एक टेबल बनाना, और आपको फिर वो आउटपुट क्या होगा? क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है कि एक आपको ऐसा क्वेश्चन आउट क्वेरी बनानी है जिसमें स्टूडेंट का नाम भी आ जाए और उसका मॉनिटर भी आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? टेबल है, टेबल के आगे रोल नंबर लिखा है और उसके मॉनिटर का नाम को आपने आईडी दे दी कि रोल नंबर 1 का मॉनिटर कौन होगा 5, रोल नंबर 2 का मॉनिटर कौन होगा 7। अब आपको एक ऐसी क्वेरी बनानी है जिसमें जब आउटपुट आए तो एक तरफ तो लिख के आए स्टूडेंट का नाम और एक तरफ लिख के आए उसके मॉनिटर का नाम। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। त्यागी सर, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सर, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल। ठीक है, तो आज आपको ये क्वेरी लिखनी है, घर जाके इसमें प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? रिप्लाई करो, ये क्वेश्चन समझ में आया? सब लोग क्वेश्चन रिप्लाई करो। काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन ओके, काफी अच्छा है। ठीक है, ये सेल्फ ज्वाइन का बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं, सेल्फ ज्वाइन के लिए। दक्ष, समझ गए ना? तो टीचर ने बोल दिया, टीचर ने असाइन कर दिया, क्लास में आई वो बोलती भाई तुम इसको पढ़ाओगे, तुम इसको पढ़ाओगे, तुम इसको पढ़ाओगे, तुम इसको पढ़ाओगे। तो हमें आउटपुट में चाहिए कौन किसको पढ़ाएगा, उसके नाम आए कि प्रीति को कौन पढ़ाएगा, अमित को कौन पढ़ाएगा, रोहित को कौन पढ़ाएगा, प्रियांशु को कौन पढ़ाएगा, नंदिनी को कौन पढ़ाएगा, इस तरीके से ना। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलिए अब सर इस क्वेश्चन का, कितने हाँ जी, क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास अभी? आई थिंक सर ये इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन है सर। हेलो 12 बच, हाँ, सर ये इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। सर, अटेंडेंस ले लेते हैं फिर, हाँ ठीक है ठीक सर? है सर, ले लीजिए। चलो अटेंडेंस टाइप करो सब लोग। अभी अटेंडेंस टाइप करके लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करे बना निकल जाएंगे मेरे हिसाब से तो। एक्चुअल में वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी ना जो मैंने हाँ। शेयर की हुई है आपसे। और अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आने के लिए तड़प रहे हैं, मतलब अभी भी 251 स्टैंड चल रही है सर। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब लोग देखो आ गई रिक्वेस्ट तुरंत। रिक्वेस्ट आ रही बड़ी तेज तेज से। तो फीडबैक लिख दिया इन्होंने उसमें, फीडबैक हाँ, में? फीडबैक दे दिया सर। अच्छा सर, इनको मेरे से मैं मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, जो जो बच्चे रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं मेरे साथ जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, क्या आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ में आ गया है, या आप लोगों को कोई कोई और चेंजेस चाहिए, या कुछ भी और तरीके की मॉडिफिकेशन चाहिए, या कुछ भी आप बता सकते हैं जिससे मुझे हेल्प मिले, तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। हमारे पास ऑप्शन है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। प्लीज राइट डाउन, मेरा पढ़ा हुआ समझ में आया, नहीं आया, कैसा आया, सब बता दीजिए मुझे। बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं सर? नहीं सर, अभी तो रोल नंबर टाइप कर रहे हैं। एक बच्चे ने किया है, प्रविश ने, यस सर। ओके, अभी दे आर राइटिंग। 250 है ना सर, रोल नंबर टाइप करने में टाइम लगेगा अभी। आ गया सर, ऋतिक ने बोला। हाँ आया है सर समझ में, ठीक है। हर्षित ने बोला। उत्कर्ष ने बोला सर 11 ऑन 12 ऑन 10, 10 11 नंबर दिए 10 में से सर उसने। अच्छा। हम्म, सब आ गया, यस सर, पूर्व ने बोला। गुड गुड। अब लोगों का इन्फिट्यू को एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप लोग मिलने वेरी जरूर आना हेल्पफुल हम लोगों से। बिंदास।
यस सर, हर्षिता ने मैसेज किया। तो दे आर टाइपिंग गुड, बिंदास। सिद्धांत, ऋत्विक त्रिपाठी, बिग फैन सर। उज्जवल सर, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए, आई हैवंट स्टडी बिफोर। कोई बात नहीं, आप लोग के जिन्होंने अभी वो किया। सर स्टिल दे आर टाइपिंग देयर रोल नंबर आल्सो सर। नो इशू सर, बच्चे ज्यादा है, टाइम लगेगा। और रोटेशन भी चल रहा है ना सर, कुछ जा रहे हैं छोड़ के, कुछ आ रहे हैं पीछे से, तो रोटेशन भी चल रहा है तब जबरदस्त। तो जो क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं उन क्वेश्चंस को, और जो भी सर करा रहे हैं, या कल शायद, कल इनकी क्लास है आप लोगों की, कल शायद अगर मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस आपको नेस्टेड क्वेरी के, और आई डोंट नो कल पता नहीं क्लास है या नहीं आपकी। तो कल है क्लास आप लोगों की? यस सर। तो कल मैं आपको नेक्स्ट, ओके, तो कल कराते हैं आपको नेस्टेड के ऊपर कुछ गेम दिखाएंगे, कुछ कैसे काम करेंगे नेस्टेड के ऊपर। ठीक है, बहुत इजी है, आपने क्या सॉल्व कर ही लिए होंगे मेरे ख्याल से, बट जो लोग नहीं है उनको कराएंगे कैसे कैसे खेल नेस्टेड के ऊपर काम कराएंगे। और स्टिल मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ क्योंकि रोल नंबर अभी भी लोग टाइप कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट के बाद हम शुरू कर देंगे। हमारे पास अभी सर 13 मिनट और बचे हैं सर। ठीक है सर, हो जाना है ना सर हमारा ये? हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है सर। लास्ट 30 सेकेंड्स। Last 10 seconds, and I'm really shocked, and sir wanted to inform you that just because of these attendance, maximum of student didn't got this opportunity. The current strength is now 209 sir, और इनकी वजह से जो अटेंडेंस के लिए बैठे हैं उन्होंने उन लोगों को नहीं आने दिया जो पढ़ने के लिए आना चाह रहे थे। मतलब रिडिकुलस। सर स्टार्ट करते हैं, चलो। सर अभिषेक सर, am I audible? Abhishek sir, am I audible? अभिषेक सर, बच्चों आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। अच्छा, अभिषेक सर। सर म्यूट है। यस सर। नहीं सर तो म्यूट है, लेकिन उनको मेरी आवाज तो पक्का जा रही होगी। अभिषेक सर, अभिषेक सर, आप कुछ कर रहे हैं इस समय? आपको मेरी आवाज आ रही है अभिषेक सर? ये म्यूट हो गया था सर, पता नहीं चला मुझे। अच्छा अच्छा, चलो एनीवेज, ओके चलो। सो लेट्स सी दिस लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व किया होगा। क्या आंसर आया था आप लोगों का, ए बताइए मुझे ए जल्दी। ए ए ए ए संस्कृति, सौम्या, फैजी, आयुष अग्रवाल, सिद्धार्थ त्रिपाठी, अद्रिका,
ओके। दक्ष ए बी, संदीप ने बी टाइप किया है, हर्षिता त्यागी ने ए टाइप किया है, उज्जवल ने ए टाइप किया है, विराट कोहली नहीं, वृंदा कोहली, आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था मैं थोड़ा, वृंदा कोहली ने ए टाइप किया है, बहुत लोगों ने ए, आयुष ने तो छोटा वाला ए टाइप किया, पता नहीं क्यों, उसकी तबीयत खराब है। चलो एनीवेज, भरत त्यागी चलो ने ए टाइप किया। Good. चलो एनीवेज, तो हमारे पास दो टेबल है, एक आइटम नाम का टेबल है, कोटेशन नाम का टेबल है। इसके अंदर आइटम कोड है, आइटम का टाइप है, आइटम का डिस्क्रिप्शन है, आइटम का प्राइस है, कैटेगरी है, क्वांटिटी है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं आइटम के। कोटेशन में है कोटेशन की आईडी, आइटम का कोड, कोटेशन का प्राइस और कोटेशन डेट। अब इन्होंने पूछा है इफ द मैनेजमेंट वांट्स द आइटम कोड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स हुज आइटम्स प्राइस मैचेस विद quotation price of more than one quotation, what will be the appropriate query for the same? So स्टार्ट करते हैं डी से, देखते हैं फिर बी ऑप्शन सही है कि सी, क्योंकि सी और डी तो किसी ने बताया नहीं है। हमने किया सेलेक्ट आइटम कोड, आइटम का डिस्क्रिप्शन, आइटम का कोड, आइटम का डिस्क्रिप्शन फ्रॉम आइटम आई इनर ज्वाइन कोटेशन ऑन इज इक्वल टू आइटम कोड इक्वल टू क्यू डॉट आइटम एंड आइटम का प्राइस इक्वल टू ग्रुप बाय आइटम डॉट कोड हैविंग सम। तो भैया ये सम तो हमने यूज ही नहीं करना। क्या पूछा है? अभिषेक सर, आपको किसी ने म्यूट कर दिया है शायद। अभिषेक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक सर, अभिषेक सर आप म्यूटेड हैं। अभिषेक सर आप म्यूटेड हैं। गड़बड़। यार ये किसने किया, म्यूट किसने किया सर को? जिसने भी किया है, चलो एनीवेज अप टू हिम और हर। ओके, सो ऑप्शन सी पे थे हम लोग। तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? सेलेक्ट आइटम कोड, आइटम का डिस्क्रिप्शन फ्रॉम आइटम आई इनर ज्वाइन कोटेशन क्यू ऑन आइटम कोड इक्वल टू क्यू डॉट आइटम कोड ग्रुप बाय आइटम आई डॉट आई आइटम हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है? इफ द मैनेजमेंट वांट्स द आइटम कोड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम्स हुज प्राइस मैचेस द कोटेशन प्राइस। तो यहां पर हमारी वो कंडीशन मिस हो गई है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब बी की तरफ आते हैं। सेलेक्ट आई डॉट आइटम कोड, आई डॉट आइटम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम आइटम आई इनर ज्वाइन कोटेशन ऑन आइटम कोड इक्वल टू क्यू डॉट आइटम कोड एंड आइटम प्राइस इक्वल टू क्यू डॉट quotation price group by I dot item code and item code description. This is totally irrelevant. Why? क्योंकि हमें मैनेजमेंट ने क्या बोला? आइटम का कोड भी मिले, डिस्क्रिप्शन भी मिले, और वो आइटम प्राइस जो मैचेस कर रहे हैं कोटेशन प्राइस से ऑफ मोर देन वन कोटेशन। ठीक है, अब ए की तरफ आते हैं। तो आई डॉट आइटम कोड, आई डॉट आइटम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम आइटम आई इनर ज्वाइन कोटेशन क्यू ऑन आई डॉट आइटम इज इक्वल टू दिस। ये इनर ज्वाइन की कंडीशन हो गई। दूसरी क्या है? आइटम प्राइस मस्ट बी इक्वल टू कोटेशन प्राइस, ये भी समझ आ गया। ठीक है, ग्रुप बाय करो ऑन द बेसिस ऑफ आइटम कोड, ये भी ठीक है। और काउंट होना चाहिए ग्रेटर देन 1, दैट मींस हैविंग काउंट इज मच आल्सो ग्रेटर देन 1। यही तो पूछा है, कोटेशन प्राइस फॉर मोर देन 1 कोटेशन। दैट मींस ऑप्शन ए is the most suitable answer out of these 4 options. क्लियर है सब बच्चों को? रिप्लाई करो भाई, क्लियर है? सौम्या ने किया यस, बाकी लोग यस, क्लियर। जानवी, प्रियांशी, रीना पांडे, अभिषेक राठौर, गुड गुड, जयेश, अद्रिका, दीपक, निमिषा पांडे, वेरी गुड, विभोर, क्लियर, ऋतिक, शुभी, वेरी गुड, सोनिया, प्रविश बाजपेयी, Anshika Agrawal, yes, very good. What about others? What about others? I'm reading name. Harshita, good, yes. Nitish, Adesh, Nandini Singh Chaudhary, and Bharat Tyagi, Tigar Guruji, Ayush Yadav, yes sir. Suraj Gupta, yes. So they are, maximum of them are typing, sir. Yes. So this is the last Pravish question. Bajpayee said once more. चलो देखो प्रविश, क्वेश्चन देख लो। इफ द मैनेजमेंट वांट्स द आइटम कोड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, मतलब आइटम का कोड होना चाहिए, आइटम का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कहां से आएगा?
एक से